Hello everyone. Welcome in E-class of Social Science. Children, today we will continue chapter number 10 in Geography, Life in the Tropical and Subtropical Regions. So what we are going to study? Beta, in our last video in part first, I have told you about the Amazon basin that is in tropical region. As you know it thus that this chapter is related with life in tropical and subtropical regions. So today in this video we will know what is the life of the people living in subtropical regions, and we will discuss about the region of Ganga and Brahmaputra. Okay, that is, and we will discuss about the Ganga and Brahmaputra basin, about its climatic condition, about flora and fauna and people and their economic activities. The Ganga and Brahmaputra basin. Beta, the Ganga basin is the part of Gangesh and Brahmaputra basin draining 10,86,000 square kilometer in Tibet, Nepal, India and Bangladesh. To the north, the Himalaya or lower parallel ranges beyond from the Gangesh Brahmaputra divide. On the west, the Ganga basin borders the Indus basin and then the Aravalli ranges. Beta, India has one of the most extensive flat and fertile plains in the world. यहाँ बहुत अच्छी खेती होती है just because of the fertile plain. These plains lies to the south of the Himalaya and they extend from the Satluj river in the west to the Brahmaputra river in the east. गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इंक्लूड्स द प्लेन ऑफ गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर. ये दो रिवर्स को मिलाकर ये पूरा टू रिवर्स को मिलाकर ये जो पूरा बेसिन बना है दैट इज द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जो कि आपका सब ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है. Children, the Ganga originate from the Gangotri glacier in the Himalaya and Bhagirathi and Alaknanda river join to form the Ganga. तो ये दोनों रिवर्स जब मिल जाती हैं तो ये किसको फॉर्म करती हैं? गंगा रिवर को फॉर्म करती हैं. इट इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. ये जो गंगा रिवर का बेसिन है, आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ गंगा, आई एम टेलिंग यू अबाउट द बेसिन ऑफ गंगा रिवर. ये सारे जितने भी मैंने आप लोगों को भी स्टेट्स बताए, दीज ऑल आर इंक्लूडेड. एंड अबाउट द ब्रह्मपुत्र बेसिन, एज यू कैन सी दिस पिक्चर. इफ यू विल सी दिस पिक्चर क्लियरली तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पूरे बेसिन का पता चलेगा. येलो पोर्शन इज शोइंग द गंगा बेसिन एंड ग्रीन पोर्शन इज शोइंग द ब्रह्मपुत्र बेसिन. Brahmaputra basin lies in the northern eastern part of India and Brahmaputra river rise from the Chamayung glacier near Lake Mansarovar in Tibet and it is called Sangpo there. तिब्बत में इसको सांगपो बोला जाता है. गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स ज्वाइन टुगेदर बिफोर ड्रेनिंग टू द बे ऑफ बंगाल. जब बे ऑफ बंगाल में, जहां आप ये ब्लैक एरो देख रहे हैं, जब बे ऑफ बंगाल में ये गिरती हैं तो गिरने से पहले ये एक डेल्टा क्रिएट करती हैं, दैट इज द सुंदरवन डेल्टा एंड द मोस्ट फर्टाइल. यहाँ मैनग्रोव टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं और वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है ये सुंदरवन डेल्टा. Now students, we will know what are the main features of this river basin. First of all, a fertile bed that includes most of North and East India. If you will see the basin, then in Ganga Brahmaputra basin एक तरफ तो माउंटेन रेंजेस पूरा लिया हुआ है और पूरा उसका जो फुट हिल है यानी पूरा जो प्लेन का फर्टाइल एरिया है गंगा रिवर के थ्रू ये पूरा कवर अप किया गया है. एंड एट द सेकेंड पार्ट ये पूरा ईस्टर्न पार्ट जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के थ्रू कवर अप किया गया है. It has a rich source of alluvial soil because of two important rivers. रिवर्स के थ्रू कौन सी सॉइल ली गई है? एलुवियल सॉइल. तो ये क्या है? बहुत ही रिच एलुवियल सॉइल है एंड दैट इज व्हाई दिस पार्ट इज वेरी मच फर्टाइल.
and a number of oxbow lakes are there. बेटा जब oxbow lakes होती है, मैंने आप लोग को चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया भी था कि when there is an oxbow lake, तो वहां का एरिया क्या हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है, बहुत ज्यादा प्लेन्स क्या हो जाते हैं, फर्टाइल हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा ऑक्सबो लेक्स भी होने के कारण ये एरिया क्या है, बहुत ज्यादा फर्टाइल है। and bounded on the north by the mountains and foothills of the Himalaya. One side because of the Gangotri glacier, एक साइड जहां पर है that is bounded with Himalayan mountain. जो आपकी पूरी हिमालयन माउंटेन है, अरावली रेंजेस है, सह्याद्री रेंजेस है, इन सबको मिला के जो पूरा हिमालय रेंजेस बना हुआ है, इसको गंगा के थ्रू कवर अप किया गया है। एंड ऑन ईस्ट लाइज टू फार्म सुंदरबन डेल्टा, दैट इज एन इंपॉर्टेंट डेल्टा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा एंड द मोस्ट फर्टाइल वन, एंड मैनग्रोव टाइप के फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं सुंदरबन डेल्टा में। तो एट द वेरी लास्ट जहां पर ये दोनों रिवर का एंडिंग पॉइंट है, जहां पर ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, यहाँ पर ये क्या क्रिएट करती है, सुंदरबन डेल्टा क्रिएट करती है। क्लाइमेटिक कंडीशन, children, the Ganga Brahmaputra basin experience monsoon type of climate. Which type of climate? That is monsoon type of climate. As you can see this picture, बेटा यहाँ जो climate है, यहाँ पर climate में variation है. How? Because Ganga Brahmaputra basin lies in the subtropical region and thus the climate is hot in summer and cool in winters. तो यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो अलग अलग तरह का होता है। आपका ये जो रिवर बेसिन है, most of the rainfall takes place during the monsoon season and the amount of rainfall decreases from east to west, and the coastal area and mountain experience a pleasant climate but the interiors experience extreme climate. तो which type of climate is here? If you will feel it, हम सभी इसी एरिया में रहते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड इट क्लियरली कि जिस टाइम विंटर होता है, अभी विंटर चल रहे हैं, तो हम लोगों को क्या फील हो रहा है, यहाँ पर विंटर्स फील हो रहे हैं। आफ्टर इट स्प्रिंग आएगा, देन समर आएगा, तो दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड एज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो टेम्परेचर भी इसी अकॉर्डिंग होता है यहाँ का। एज अ बेसिन लाइज इन सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द प्लैनेट, देन the climate here is hot in summer and cool in winter, and being a monsoon dominated area, the basin face heavy rainfall between the month of July and September. Flora and fauna. Children, the Ganga Brahmaputra basin has rich and varied natural vegetation. Tropical deciduous forests are found in this in this plain, because as you know it, in my last chapter I had explained you about the tropical type of forest and also about the deciduous type of forest. तो deciduous type के forest कैसे होते हैं, जो कि autumn का जो season होता है उस टाइम ये अपने पत्तों को क्या कर देते हैं, shade कर देते हैं और बिल्कुल barren land जैसे दिखाई देते हैं। तो this type of forest are found here, but in this part there is a variety of vegetation, variety of different type of plants, variety of different type of species and animals. Children, in this part जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का पार्ट है, if you will see at the top यहाँ पर हिमालय माउंटेन है, तो यहाँ कॉनिफेरस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, साथ ही साथ डेसिडियस टाइप के फॉरेस्ट आपके जो प्लेन एरिया में है उसमें डेसिडियस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, बट इफ वी टॉक अबाउट द सुंदरबन डेल्टा, तो वहां पर मैनग्रोव टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो यहाँ पर फॉरेस्ट यानी वेजिटेशन में भी बहुत ज्यादा क्या है, वैरायटी। एंड इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज द हाउस ऑफ वेरिड वाइल्ड लाइफ एज वेल। टाइगर, एलिफेंट्स, डियर, monkeys are the most common, and apart from these one, horned rhinoceros, crocodiles, alligator and Bengal tiger are a common sight in this delta. People and their economic activities. Children, agriculture is the main occupation of the people of Ganga Brahmaputra basin. Rice is the main crop grown here, while other crops grown are wheat, maize, oilseed, gram, millets, jute and sugarcane.
Cottage and small scale industries are also found here, and fishing is also a growing industry here. As you can see the picture, you can understand जो rice है ये सबसे ज़्यादा उगाया जाता है किधर के एरिया में, मेनली आपके बंगाल के एरिया में. तो if we talk about that area, तो यहाँ पर क्या है, राइस सबसे ज़्यादा उगाया जाता है. एंड फर्टाइल एलुवियल सॉइल डिपॉजिट बाय द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होती है, खेती बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल यहाँ पर क्रॉप्स बहुत अच्छी उगाई जा सकती हैं. वैरायटी होती है क्रॉप्स की, क्योंकि एलुवियल सॉइल है और साथ ही साथ क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट भी फेवरेबल होता है. चिल्ड्रन, द फ्लैट लोलैंड मेक फार्मिंग easier and are also useful for the development of an excellent नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज. तो रोड्स और रेलवेज के अच्छे होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर चीजों को एक्सपोर्ट करने में भी क्या है, आसानी है. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मैंने अभी बताया ना, लाइक कॉटेज इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा ग्रो अप कर चुके हैं. वन मोर थिंग, फिशिंग इंडस्ट्री यहाँ पर बहुत अच्छी होती है बिकॉज इट हैविंग अ गुड coastal area. Well, students, I hope this video will be useful for you. Thank you.